Hello students, welcome to my channel Biogene again. I am Bhajan and आज हम बात करेंगे about the contraceptive methods. ये जो मेरा lecture है this is in continuation with my previous lecture जिसमें मैंने कुछ methods आपके साथ discuss किए थे. So let we complete the part. और बात वही है जी, हम जैसे चलते आए हैं कि NCERT हमारी बेस गाइड रहेगी और जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं वो हमारे डायरेक्शन गाइड्स रहते हैं. सो लेट मी हैव अ लुक इन द NCERT. तो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वी हैव द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन? It should be user friendly, it should be good, it should be effective, it should be safe, it should no way interfere with your sexual act or sexual desire. And we have several methods for the contraceptions. Natural method we have already discussed. Barriers and IUDs, ये मेरे previous lecture में मैं discuss कर चुकी हूँ. Even in the chemical methods, I have already discussed with the OCPs, जो हमारी hormonal pills हैं उसके बारे में discuss किया. तो आज जरा हम आगे बात करेंगे. Okay. सो नेचुरल मेथड्स की बात करें तो एक क्विक रिवीजन लेते हुए 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे. वन इज़ द कोइटस इंटरप्टस, दैट इज मेल withdraws its penis before the ejaculation. Second was the lactational amenorrhea, that is till until mother is on the intense lactation, there is no menstruation, and this can be a method of contraception. And third is the periodic abstinence. This method implies that there is if the abstinence is kept for 10 to 17 days of the reproductive period, then there is no chances of the conception. Then in the barrier methods, of course, principle क्या है natural methods का? They avoid the chances of meeting of the gametes. Barrier methods में we have the condoms, जिसमें we have the male condoms as well as the female condoms, that is femidomes. And second, I have already discussed with the diaphragms, loops, that is cervical caps and cervical loops also, diaphragm, vaults, loops, etc. and cervical caps, etc. So this is जो condoms हैं ये reusable नहीं है, I mean disposable हैं, जबकि diaphragm vaults and cervical caps जो हैं ये reusable हैं. और then we have the IUDs. IUDs में I have done about the non-medicated IUDs, that is Lippes loops, and then we have copper releasing IUDs. And then third is the hormonal IUDs. In hormonal IUDs, I have example of LNG20, I have example of Progesta Cert. In copper releasing IUD, I have example of Multilode 375. And then we have copper 7, copper T. And in non-medicated, I have example of the Lippes loop. So these are some of the examples जो हमने कल डिस्कस करी थी. So these are here, and this is one of the very commonly used method. और इनका जो efficacy है वो भी काफ़ी लंबा रहता है. They can be inserted for 5 to 10 years. So that is why very popular method. Another popular method in male is the condoms, that is the male condoms. So we have example of Nirodh, and then we have the chemical methods. जरा एक बार NCERT पहले देख लें. In barrier methods, ovum and sperm are prevented from physical meeting. Such methods are available for both males and females. Condoms, barrier methods made of thin rubber or latex sheath used to cover the penis in the
male or vagina and cervix in the female just before the coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. Nirodh is a popular brand of condoms for male. Use of condoms has increased in recent years due to additional benefit of the protecting the user from contracting STDs and AIDS. Both the males and the female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby giving privacy to the user. Diaphragms, cervical caps and walls are also barrier made up of rubber that are inserted by female, of course, into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. They are reusable. Spermicidal creams, jellies, and foams are usually used along with the barriers to increase their efficacy. So, then we have another effective and popular method is the use of intrauterine devices, that is IUDs. These IUDs are inserted by doctors or experts, nurses in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs, Lippes loop, copper releasing IUDs, that is copper T, copper 7 and multi-load 375, and hormone releasing IUD, Progesta Cert and LNG20. In the previous need, they have the question LNG20 क्या है और मल्टीलोड 375 क्या चीज़ है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या होती है और ये कैसे काम करती हैं. दे इंक्रीजेज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म. कॉपर जो है वो उसकी मोटिलिटी को रिटार्ड करता है और हार्मोनल जो हैं वो सर्विकल या यूट्रस को हॉस्टाइल बना देती हैं ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो, एंड इसके अलावा उस स्पर्म मोटिलिटी को भी रिड्यूस करती हैं. नाउ सो यहाँ पे थी इन एडिशन दैट मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म. तो ये वाला पोर्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं. सो दिस वॉज अ क्विक रीकैप जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था. सो IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल who wants to delay the pregnancy or to space the children. It is one of the widely accepted method of conception in India. Then we have the oral administration or small dosages of either progestogens or progestogen-estrogen combination is another contraceptive method used by female. They are used in the form of tablets, hence are popularly called as pills. और pills को कितनी देर के लिए लिया जाता है? 21 days starting preferably within first 5 days of menstrual cycle. फिर after the gap of 7 days, it has to be repeated in the same pattern till female desire to prevent the conception. Pills कैसे काम करती हैं? They inhibit ovulation as well as implantation and alter the quality of the cervical mucus. So ovulation को prevent किया, implantation को prevent किया and alter the quality. अगर तो choice आती है all above की with all these 3 choices, तो of course हम ये देंगे. But if you have to choose one, तो मेनली क्या चूज़ करेंगे? तो फिर उसमें अगर एक ही चूज़ करना है तो ऑफ कोर्स वी विल गिव द प्रेफरेंस टू इट. दे प्रिवेंट ओवुलेशन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि किस तरह से वो अपना काम करती हैं. पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स. सहेली, अ न्यू oral contraceptive pill for female contain a non-steroidal preparation. It is once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. Now, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सहेली कैसे काम करती है जबकि NCERT इसके बारे में कोई बात नहीं करती. ऑफ कोर्स वो जनरल पिल्स के बारे में काम कर रही है, बात कर रही है, तो उस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है. फिर वो कहता है प्रोजेस्ट्रोजन अलोन एंड इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द skin.
their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Administration of progestogen or the combination of progestogen and estrogen or IUD within 72 hours of the coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. ओके जी, तो ये मैंने काफ़ी सारे केमिकल मेथड्स आपके लिए यहाँ पे रीड करे हैं. अब हम एक एक करके बात करते हैं. पिल्स मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे केमिकल मेथड्स में वी हैव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ केमिकल मेथड्स में यहाँ हमने ऑलरेडी पिल्स के बारे में डिस्कस किया है. सो फर्स्ट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें हमने हार्मोनल पिल्स के बारे में बात करी. हार्मोनल पिल्स, okay, so this is either combination of estrogen progesterone small dosages or maybe the progesterone alone. So these are contraceptive pills जिसमें I have an example of the Malati. Please check out my previous lecture. And one thing more I would like to say, it really gives me hope to do more for you when I get the message or maybe the feedback from you that we are really being helped. So if you are feeling it helpful, share it so that it can be helped to others. Second हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, this is hormonal pill, and second I will talk about Saheli. Saheli is the research product of, or it's developed by, I should say, research product, or I can say developed by CDRI Lucknow, Central Drug Research Institute Lucknow. Saheli जो है, it is commonly called once a week pill. ये एक नॉन स्टीरॉयडल प्रेपरेशन है. दैट इज, क्या है उस प्रेपरेशन का नाम? सेंट क्रोमन. हियर आई एम नॉट गोइंग दैट मच इन डिटेल. अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी, दिस पिल हैज़ अ गुड इफेक्ट फॉर द अदर थिंग्स ऑल्सो. कि इसको कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में भी they use it. It has some efficacy, or some other hormonal disturbances में भी इसका efficacy है. तो let's not go into that detail because हमारा यहाँ पे जो main purpose है वो सिर्फ इसके लिए है. तो ये नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन है, दैट इज सेंट क्रोमन. ओके, ये काम कैसे करती है? बेसिकली इट मेक्स द यूट्रस आउट ऑफ फेस. ये उसको आउट ऑफ फेस कर देती है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो. सो इट चेक्स implantation. How come? This pill has both weak as well as strong estrogenic property. दोनों हैं इसके अंदर, क्योंकि जो आपका इसमें प्रेपरेशन है वो इस तरह से काम करती है. तो ये क्या करती है कि जो यूट्रस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं ये उनको चेंज कर देती है सो दैट इम्प्लांटेशन ना हो. ये दूसरे लाइक हार्मोन्स की तरह नहीं काम कर रही, जिसमें कि अगर आप हार्मोनल पिल्स ले रहे हो तो देर आर चांसेस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. कोई हार्ट अटैक नहीं कर रही बट कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं बिकॉज हार्मोनल प्रेपरेशन उनके अंदर. तो इसमें ये सेफ्टी है. सो इट चेक्स इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस. तो ये आपके लिए बस इतना ही कि क्या कैसे काम कर रही है. ये इम्प्लांटेशन नहीं हो रही, ये यूट्रस को आउट ऑफ फेस कर देती है. इम्प्लांटेशन एंड
वंस अ वीक पिल है, सेंटक्रोमिन है इसके अंदर, इम्प्लांटेशन को चेक कर रही है और CDRI लखनऊ का रिसर्च प्रोडक्ट है. देन I would like to talk about the emergency pills. These are commonly but wrongly called morning after pills. ऐसा क्यों? क्योंकि अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स के बाद, जैसे विदिन 72 आवर्स अप टू 5 डेज इसकी एफिकेसी रहती है, मतलब अगर ले लिया जाए तो चांसेस आर देयर कि कंसेप्शन नहीं होती और सेफ्टी रह जाती है. सो एमरजेंसी पिल्स, दे आर टू बी टेकन within 72 hours after unprotected coitus. और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, एमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्शन है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और किससे हो सकती है? कॉन्ट्रासेप्शन can be provided by taking injection. I'll discuss about it. ये क्या है? Injection, having implant, or using or implanting IUD. IUD implant कर लिया जाए, ठीक है? और क्या ले सकते हैं? और one can take the emergency kind of pill, यानी either combination of estrogen, progesterone, इन पिल. तो ये सारे ही क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए काम करते हैं. सो ये जो हमने एमरजेंसी पिल्स की बात की है, इसमें एक एग्जांपल देती हूँ आपको, वेरी कॉमनली अवेलेबल, दैट इज़ आई पिल और अनवांटेड 72. ये जो पिल्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं और इसको एज अ लोग एमरजेंसी पिल्स की फॉर्म में, मतलब एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं. देन ये तो हो गया बात पिल्स की, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगी जिसमें हार्मोनल पिल्स मैंने डिस्कस किया, सहेली, एमरजेंसी पिल्स. नाउ आई कम टू फोर्थ इज द इंजेक्शंस. सो दैट इज द इंजेक्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंड नाउ वी हैव कम टू इंजेक्शंस. तो इंजेक्शंस क्या हैं? इंजेक्शंस, they are similar in composition to that of contraceptive pills, CPs, contraceptive pills, यानी कि either combination of estrogen and progesterone या फिर progesterone alone. तो but efficacy is longer, up to 3 months average. Okay, the injection में I have example over here is the Depo-Provera. इस नाम से इंजेक्शन अवेलेबल है. देन इंजेक्शंस में के बाद we also have the implants. जो इम्प्लांट्स हैं दे आर द वेरी स्मॉल समथिंग लाइक रॉड, जैसे फ्लैट रॉड्स होती हैं, छोटी बिल्कुल, है ना. दे आर इम्प्लांटेड अंडर स्किन. ये देखिए, ये जो आपको मैं फिगर दिखा रही हूँ ये इम्प्लांट की है. इसको सर्जिकली जो है वो अपर आर्म की जैसे स्किन है उसके नीचे इम्प्लांट
कर दिया जाता है. सो दे आर इम्प्लांटेड अंडर स्किन and their efficacy is quite longer. तो इसका जो efficacy है वो काफ़ी लंबा है, longer. एग्जाम्पल हमारे पास है नॉर प्लांट. तो यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान से देखी जाए तो जो इसका एफिकेसी है वो अप टू इवन 5 years तक भी है. ओके, ये जितनी भी मैंने अभी डिस्कस किया, पिल्स हो गए, चाहे वो आपके इम्प्लांट्स हो गए, चाहे वो आपके इंजेक्शंस हो गए, वॉट एवर इट इज़, दे ऑल नीड मेडिकल एडवाइस. सो इसमें हमारे पास एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो बात करें. एडवांटेज क्या है? एफिकेसी इज हाई. ओके, और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि नीड्स मेडिकल सुपरविजन इन सम minor local surgical procedure is required. जैसे कि ये इम्प्लांट के केस में है, ठीक है. और जो आपकी हार्मोनल पिल्स हैं उनसे क्या हो सकता है? उनसे इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, और some people experience irregular bleeding, or some people even experience the heavy bleeding also. nausea हो सकता है, weight gain हो सकता है, and even data नहीं कहता but people experience the mood swings also, and in long term there are even चांसेस ऑफ द कैंसर. जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशनशिप एस्ट्रोजन के साथ है. तो जिन लोगों में एस्ट्रोजन नहीं देनी, तो उस केस में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन पिल है वो यूज़ ही नहीं कर सकते आप. तो ऑफ कोर्स आपके लेवल पे ये हम नहीं बातें करेंगे क्योंकि दिस इज़ आउट ऑफ योर स्कोप. ओके जी, सो ये हम बात कर रहे थे आपके पिल्स की. देन वी हैव another method that is called as a surgical method. This surgical method की जो बात करें, let me explain first. Surgical methods. These are 5 methods. तो surgical methods, इनको हम sterilization भी कहते हैं. They are called as sterilization, and they are also called as terminal methods. टर्मिनल मैथड्स. वाई टर्मिनल मैथड्स? क्योंकि इसके बाद नो मोर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो भी है वो नहीं हो सकता. सो यहाँ पे इफ आई गो फर्दर, सॉरी फॉर दिस लिटिल ऑफ द इश्यूज, जो लॉजिस्टिक इश्यूज भी आ जाते हैं बीच में. ओके, so surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception. तो ये गैमेट ट्रांसपोर्ट को इन्होंने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया. एक बार कोई फटाफट रिकैप ले लेती हूँ. अवॉइड द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ गैमेट्स, ये बात थी हमारे नेचुरल मैथड्स में. देन बैरियर मैथड्स फिजिकल मीटिंग को ही रोक लेते हैं. आईयूडीज एक डिफरेंट तरीके से काम कर रही हैं जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन भी चाहिए. आई मीन यू नीड सर्टन, नॉट मेडिकल इंटरवेंशन इन द फॉर्म कि भी आपको किसी ना किसी मेडिकल एक्सपर्ट को की राय लेनी पड़ती है उनको यूज़ करने के लिए, और उनकी असिस्टेंस भी लेनी पड़ती है उसको लगवाने के लिए. तो उधर फैगोसाइटोसिस हो सकता था, इम्प्लांटेशन में हो सकती है कि वो उसको रोक रही हैं और वो स्पर्म का मोटिलिटी को भी रोकती हैं. तो इस तरह से वो काम करती हैं. पिल्स हैं वो बेसिकली ओवुलेशन को चेक कर रही हैं, इम्प्लांटेशन को चेक कर रही हैं, सर्विकल क्वालिटी का जो म्यूकस का क्वालिटी है उसको चेंज कर देती हैं. सो इस तरह से एवरी मैथड हैज़
इट्स ओन वे ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सर्जिकल की, ये ब्लॉक ही कर देता है गैमेट के ट्रांसपोर्ट को। तो इस केस में क्या हुआ, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल इज कॉल्ड एज वेसेक्टोमी, तो ऑफ कोर्स, एंड इन फीमेल it is called tubectomy. In vasectomy, the small portion of vas deferens is removed and tied up through a small incision on scrotum, where in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up through small incision in abdomen or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is poor. Okay. So it needs to be emphasized that selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. One must also remember that contraceptives are of not regular requirement for maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against natural reproductive event, conception और प्रेगनेंसी। इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल मेथड्स में टू मेथड्स, वन इज कॉल्ड एज द वेसेक्टोमी एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज द ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, इसमें क्या होता है, मेल की जो वास डिफरेंस है उसको हमने कट किया, उसका कुछ पोर्शन रिमूव किया और उसको टाई अप कर दिया इस तरह से। नाउ ये हो गया। आई ट्राई यहाँ पे, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली हमने किया क्या। मैथड तो समझ लिया, अभी ये किया, बट करा क्या इसके अंदर। ओके, आई टेक अप लाइक दिस, दिस इज द टेस्टिस, यहाँ से ये एपिडिडमस, दिस इज वास डिफरेंस, इट लूप्स और ओवर द ब्लैडर, ये मेल का ब्लैडर है, इसके ऊपर ये लूप करती है एंड देन it meets with the duct from the seminal vesicles. It forms the ejaculatory duct. This portion is prostate gland. ये हो गए जी seminal vesicles। और here is the penis of the male, like something like this. Okay, so why I'm just telling you all this thing? Is it really required? हमने क्या किया, a small cut कहाँ से दिया, through scrotum, scrotum, vas deferens, cut, some part removed and tied up. अब क्या हुआ ये देखिए, हमने इसको ऐसे कट किया, उसका कुछ पार्ट रिमूव कर दिया और बाकी को इस तरह से टाई अप कर दिया। क्या करना है करके, गैमेट यानी कि स्पर्म यहां से निकलेगा और यहां रुक जाएगा। अब क्या हुआ, स्पर्म की वायबिलिटी है, जितनी देर तक स्पर्म वायबल रहेगा, जिंदा रहेगा, तब तक रहेगा, उसके बाद तो खत्म हो गया यहीं पे। लेकिन स्पर्म तो आ गया ही नहीं। तो यहाँ पे जो बताने के लिए, जिसके लिए मैंने ये बताया, वो ये था, सीमन विल बी रिलीज्ड बट विदाउट स्पर्म, और आई कैन से सेमाइनल प्लाज्मा विल बी रिलीज्ड। सो स्पर्म ही नहीं है, मेल गैमेट ही नहीं है, तो कंसेप्शन का चांस तो हो ही नहीं सकता। सो नो गैमेट नहीं है इसके अंदर।
नाउ कमिंग टू ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ द फिलोपियन ट्यूब इज कट, सो लेट वी हैव अ क्विक, इस तरह से ऑफ कोर्स दोनों साइड के वास डिफरेंस काटेंगे या दोनों साइड के फिलोपियन ट्यूब्स काटेंगे, ऐसा नहीं एक की तरफ काट दिया तो एक काट दिया तो फिर दूसरा तो भी है ही है, सो दोनों साइड. ओके, सो लेट्स हैव अ जस्ट यू नो रफ डायग्राम ऑफ दिस. दिस इज अ काइंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये ऐसे, here is the uterus, something like this. So let's not go into very perfection of the diagrams. I think enough is here to make you explain कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हमने जैसे बना दिया. अब क्या हुआ, ओके यहाँ पे हमने इसको कट किया, अ स्मॉल कट इज गिवन ओवर हियर, पार्ट इज रिमूव्ड एंड इसको भी टाई अप कर दिया, इस तरह से टाई अप कर दिया, इस तरह से. तो व्हाट वी हैव डन, अ स्मॉल कट is given either through vagina or abdomen. Fallopian tubes are cut, some part removed and tied up. ये तो कर दिया, कंसेप्शन प्रिवेंट होगी. हुई कैसे, देखिए, अब ओवुलेशन हुई, एक एग्जाम्पल लेते हैं. ओवुलेशन हुई, ओवा यहाँ चला गया, ओवा यहाँ जाके रुक गया. अब जितनी उसकी वायबिलिटी है उतने दिन तक रहा, बाद में ख़त्म हो गया. अब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं होगा, लुक एट दिस. यहाँ पे बच्चे, ये मैं बना रही हूँ इस तरह से, दिस इज ओवरी. आफ्टर ओवुलेशन एक रप्चर्ड सा स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम बना और ओवा जो था वो रिलीज हो गया फिलोपियन ट्यूब में, और ये बन गया आपका कॉर्पस ल्यूटियम. This structure is corpus luteum and here is ova. Let's say ये 14th डे पे हुआ है. Let's say कि 14th डे पे ओवुलेशन होती है तो हमने 14 डे मान लिया. 14th डे पे ओवुलेशन हुई, 14, 15 एंड 16 तक ओवम यहाँ वेट किया. अब आगे चलते हैं. नाउ हियर इज द यूट्रस. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे, अब जब ओवा वेट कर रहा है यहाँ पे और उसको नहीं पता, अब कॉर्पस ल्यूटियम को तो नहीं पता ना क्या हुआ, वो तो एक स्ट्रक्चर जो ओवरी में बना हुआ है. अब डे 14, 15, 16, डे 14, 15, 16 में कॉर्पस ल्यूटियम का साइज जो था वो बड़ा होना शुरू हो गया. ओके, अब कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन, मेन सोर्स ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन एंड ऑल्सो एस्ट्रोजन भी. अब ये प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन क्या कर रही है, जो यूट्रस की लाइनिंग ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज बनी थी, थिक हुई थी, उसको उसने और थिक करना शुरू कर दिया, और थिक करना शुरू कर दिया. 16, अब जरा ओवम देखते हैं. ओवम आगे चला गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऑलमोस्ट 22 और 23 डेज जब ये यहाँ पे पहुँच जाता है. इट कुड बी 24
हर एक के अंदर अलग अलग है, मैं एक एवरेज लेके चल रही हूँ 23 डेज पे ये पहुँच गया लेट्स से। उधर 23 डेज में कॉर्पस ल्यूटियम का साइज आप देखें कहाँ तक जा चुका होगा, इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड इफ द कॉर्पस ल्यूटियम का साइज इंक्रीज कर रहा है तो नेचुरली ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो है उसके लेवल्स ब्लड में बढ़ते जाएंगे। उसका जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ता जा रहा है। तो लेट्स से ये हमारा एस्ट्रोजन था और ये हमारी प्रोजेस्ट्रॉन थी। अब प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल बढ़ने शुरू हुए, डे आई कैन से 20 से लेकर 23 तक वो बहुत ही मैक्सिमम पहुंच जाते हैं, और हमारी एस्ट्रोजन का लेवल भी जो डे 15 पे नीचे आ गया था अब वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब ये दोनों आपके हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, अपने मैक्सिमम लेवल्स के ऊपर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, अब ये दोनों हार्मोन्स अपने जैसे ही अपने लेवल्स को टच करते हैं, हाई लेवल को टच करते हैं, हुआ क्या, दोनों ने यानी कि आपके प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन ने जो आपका पिट्यूटरी हार्मोन था, नाउ व्हाट आर द पिट्यूटरी हार्मोन्स, लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी, दिस इज LH नीचे आ गया, और ये एक दूसरा हार्मोन भी था यहाँ पे दैट इज FSH। अब ये दोनों हार्मोन्स ओवुलेशन के बाद नीचे आ चुके थे। जैसे ये हार्मोन्स बढ़े, इन्होंने इन दोनों को नेगेटिव फीडबैक दे दिया। किसको किसको नेगेटिव फीडबैक दे दिया, दिस इज द लेवल्स ऑफ LH एंड दीज आर द लेवल्स ऑफ FSH। और ये हार्मोन थोड़े से आपके नीचे ऐसे डिप करें। जब ये हार्मोन डिप किया ये और उसका मेंटेन रहते हैं, जैसे डिप किया इन्होंने कॉर्पस ल्यूटियम को ब्रेक कर दिया। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो आपका डीजेनरेट होना शुरू हो चुका है, इन्वॉल्यूट होना चुका हो जाए। तो ये जैसे ही डीजेनरेट हो रहा है तो नेचुरली अब ये क्या हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है, इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और इसका डीजेनरेशन होना शुरू हो गया। जैसे जैसे इसका डीजेनरेशन होना शुरू हुआ, आपका जो लेवल था प्रोजेस्ट्रॉन का वो आपका नीचे आना शुरू हो गया। यानी ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम था और अब आपका कॉर्पस ल्यूटियम छोटा हो रहा है। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम छोटा हो रहा है और धीरे धीरे वो कॉर्पस एल्बिकन यानी डीजेनरेट हो रहा है, इस हार्मोन का लेवल अब आपका क्या हो गया, नीचे आ गया। और जैसे ही ये हार्मोन का लेवल नीचे टच किया, अपने मिनिमम लेवल पे आकर लेट्स से टच किया, तो जो एंडोमेट्रियम थी, मैंने पहले कल भी बताया था ये बात आपको अपने पिछले लेक्चर में, कि भी वो यूट्रस को स्ट्रेच करके रखता है, प्रिपेयर करके रख रहा है प्रेगनेंसी के लिए। और अगर ये हार्मोन का लेवल नीचे गया तो नेचुरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस विल इंक्रीज एंड दे कॉज इन द ब्रेकिंग ऑफ द ऑल ये जो लाइनिंग थी वो ब्रेकअप कर गई। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, ये मैंने ये जो इतना सारा आपको बता दिया, उसका रीज़न क्या आपको समझ आया कि जब ट्यूबेक्टोमी करी है तो ओवरी तो यूट्रस के ऊपर जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसी तरह से काम कर रहा है, इररिस्पेक्टिव कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे हाँ जी, सो व्हाट इज़ द रिजल्ट, क्या हुआ रिजल्ट, रिजल्ट इज ट्यूबेक्टोमी के केस में क्या होगा, menstrual cycle will occur. Menstrual cycle will continue. Menstruation भी होगी, will occur, लेकिन but without ovum, or I can say secondary oocyte। ठीक है जी, तो ये है हमारे दोनों मेथड्स का काम। अब जरा फटाफट एंडिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहता वन इज फोर्स टू यूज दीज मैथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन। तो हम कह रहे थे जो हम ये कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज़ कर रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट हो रहा है वो तो हो नहीं था ना, तो हम उसको रोक रहे हैं।
क्यों? क्योंकि हम अपने उतने बच्चे नहीं चाहते या उतने बच्चों में स्पेस चाह रहे हैं. सो इट इज़ बेसिकली जो बायोटिक पोटेंशियल है, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, हम उसको रियलाइज्ड पोटेंशियल पे ला रहे हैं. सो व्हाट इज द बायोटिक पोटेंशियल? बायोटिक पोटेंशियल इज कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. और व्हाट इज द रियलाइज्ड पोटेंशियल, कि कितना कर रहे हैं. No doubt, widespread use of these methods have significant role in checking uncontrolled growth of population. Although ये reproductive जो events है उसके against है, natural reproductive event के, but still this is very effective method to control the population growth. However, there are possible effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual cycle, or even breast cancer. Though not very significant, should not be totally ignored. That I have already discussed. कि भी इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते. So this is all with your contraceptive methods. I have completed it and hope you will like it. Of course, if you like, do press the icon also, bell icon also, to have my more lectures. Share, subscribe. Thank you very much. Stay safe.